Good morning, students. Welcome back to the class. How are you? Okay. We are studying the lesson. What is our lesson's name? Our lesson's name is fractions and decimals. Okay. Fractions and decimals, in which we are studying about the fractions. We are studying about the fractions. What is fraction? How many terms fraction has? Fraction has two terms. Fraction has two terms. One is a numerator and second one is a denominator. Second one is a denominator, in which denominator denotes in how many parts we divide the whole things. Denominator क्या शो करता है कि हमने एक whole thing को कितने parts में divide किया है, and numerator shows and how we distribute that whole part. जितने हमने parts किए उसको हमने कैसे distribute किया है. After that we have studied the 10 types of fraction. Okay, what are the 10 types? First one is a proper fraction, second improper fraction, third mixed fraction, fourth one is negative fraction, then complex fraction, then decimal, then vulgar, then like, unlike, and last one is equivalent. Okay, I hope all the types of fractions you have understood very well. Then we switch for the addition and subtraction of the like fractions. Okay, हमने क्या देखा था? Addition and subtraction of like fractions, but उसमें भी कुछ problems आपको confuse कर रहे थे, ठीक है? But in which some problems get confused. Okay, now I have given you the question. I have given you the question 15 upon 8 plus 9 upon 8. 15 upon 8 plus 9 upon 8. You have to solve this. They both are the like fractions and you have to perform the addition of both of them. Now what you will do? You write the denominator first because the denominator of both are same. Then you add the numerator, that is 15 plus 9. 15 plus 9. What is 15 plus 9? 15 plus 9 is 24. 15 plus 9 is 24 divided by 8. अभी ध्यान दो, ये जो है इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसे इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे. बट एट द सेम टाइम सबसे पहले ये चेक करना कि कहीं ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है. अगर आपको आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में दिख रहा है तो आप उसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है. बट अगर आपको वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिख रहा है तो आप उसे सबसे पहले चेक करना कि वो कहीं शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है. इन दिस केस इट कैन गेट कन्वर्ट इनटू द शॉर्टेस्ट फॉर्म. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ 24 अपॉन 8? 24 अपॉन 8 का शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा? क्या होगा शॉर्टेस्ट फॉर्म? इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा 3 अपॉन 1. Okay, when there is a 1 in a denominator, there is no value of that 1. अगर denominator में 1 आता है तो उसकी कोई value नहीं होती है, ठीक है. You can skip it. That means your answer is 3. Now it can't be converted into any. This is a proper fraction. क्योंकि ये 3 upon 1 है, ये proper fraction ही कहलाता है क्योंकि 1 can be skipped. Okay. Now suppose next is 9 upon 13 plus 4 upon 13. 9 upon 13 plus 4 upon 13. Okay, do it. I will give you the third one. Third one is 7 upon 14. Sorry, 7 upon 15 minus 7 upon 15. 7 upon 15 minus 7 upon 15. Okay, in this case what we will do? You will write the denominator. Again आप क्या करोगे? Denominator को फिर से लिखोगे. 9 plus 4. 9 plus 4. Yes, 9 plus 4. 9 plus 4 is 13. That is 13 upon 13. And when the numerator and denominator is same, your answer is 1. जब numerator और denominator same होता है तो आपका आंसर कभी भी 1 होता है, ठीक है. इन दिस केस वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों सेम है. दैट मीन्स जस्ट यू डू लाइक द 4 minus 4. 4 minus 4 is 0. इन द सेम वे 7 upon 15 minus 7 upon 15 is 0. बट अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट यू राइट द डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट करोगे. 7 minus 7 दैट इज 0 upon 15. 0 upon
15. When there is a zero in a numerator, जब भी किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जीरो आता है, your answer is always zero. Your answer is always zero. But अगर यही वाला जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो आपने कुछ मिस्टेक की है, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है. द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड. आप उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते. ठीक है ना. ये हो गया आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन. ओके, अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, यू नो अबाउट द एलसीएम. व्हाट इज एलसीएम? आपको एलसीएम पता है कैसे निकालते किसी दो नंबर्स का? ओके, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7 and 14? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7 and 14? एलसीएम ऑफ 7 and 14. You have to find out the LCM of 7 and 14. What is? LCM कैसे निकालते हैं? You have to write these two numbers in these two blocks. Okay? जो दो नंबर्स या तीन नंबर्स या चार नंबर्स आपको दिए जिसका आपको एलसीएम निकालना है, आप उसे क्या करोगे? ऐसे ब्लॉक्स में राइट इट डाउन करोगे. ठीक है, फिर आप चेक करोगे कि ये किस नंबर से डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 7 से ही होंगे, दोनों होने चाहिए, या अगर 3 है तो 3 में से एटलीस्ट 2 होने चाहिए. ठीक है, तो 7 1s are 7 and 7 2s are 40. Okay, now this 1 and 2. Now this is 1 and 2. You have to, अब आपको इन दोनों नंबर को, 1 है तो 1 का तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लास्ट में 1 ही लाना है. तो ये 2 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में. दैट मीन्स योर आंसर इज हियर 2. 2 1 तो 1 टाइम्स ही आएगा, और ये जो 2 है ये 1. आपके जब तक के यहाँ के जितने भी ब्लॉक्स है वो जब तक के सारे 1 नहीं होते हैं, आपको एलसीएम परफॉर्म करना है. नाउ आपका एलसीएम कैसे निकलेगा? तो एलसीएम इज 7 into 2, दैट इज 14. दैट इज 14. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 6, 12 and 4. 6, 12 and 4. You have to find out the LCM of these three numbers. How will you find out? सबसे पहले आप तो इन्हें ब्लॉक्स में लिखेंगे. ठीक है, that is 6, 12 and 4. ओके, नाउ चेक करो ये तीनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं? तीनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं. सपोज अगर यहाँ पे एक ऐसा नंबर होता है, सपोज 8 नहीं, 8 भी आता है. ऐसा कौन सा नंबर? 15. कोई भी नंबर ले रहे आ रहा है. कुछ नंबर? ओके 5. ओके, टेक इट 5. अभी आप अगर चेक करोगे तो ये तीनों नंबर्स किसी भी एक टेबल में नहीं आते. ठीक है, ये तीनों नंबर्स किसी भी एक टेबल में नहीं आते. तो आप क्या करोगे? आप चेक करना कि इनमें से कोई दो नंबर्स ऐसे जो एक कॉमन टेबल में आते हैं या नहीं आते. तो आपको कॉमन टेबल में दिखेगा 6 and 12 एक कॉमन टेबल में आते हैं. दैट इज द टेबल ऑफ 6. दैट इज द टेबल ऑफ 6. दैट इज 6 1s are 6, 6 2s are 12 एंड ये 5 तो आता ही नहीं है, तो उसको कुछ करना ही नहीं है, उसे आपको एज इट इज 5 लिखना है. ठीक है, नाउ 1 वाला ब्लॉक जो है उसे तो आप कुछ करोगे नहीं. अब 2 और 5 इटसेल्फ सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, वो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं. जो 2 और 5 है वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं. तो आप एक बार 2 से डिवाइड कर लो, दैट इज 2 1s are 2 एंड 5 रहेगा एज इट इज. फिर आप डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 1s are 5. ओके, नाउ आपका एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज योर एलसीएम? एलसीएम इज इक्वल्स टू 6 into 2 into 5. Your LCM is 6 into 2 into 5. That is 12 into 5. That is 60. That means the LCM of 6, 12 and 5 is 60. इसका LCM क्या होता है? 60. ठीक है, जब आप अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर. दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द डिनोमिनेटर का एलसीएम आपको निकालना होगा. सपोज अभी एक क्वेश्चन लेते हैं. एक क्वेश्चन अभी हम लोग ले लेते हैं. दैट इज 4/5 plus 5/9. 4/5 plus 5/9. You have to find out the value of 4/5 plus 5/9. Okay, how will you find out? अभी तो आपका ये like fractions नहीं है. They both are not the like fractions. That means you can't find out the value directly. आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. तो you have to find out the LCM of both of them. What is the LCM of both of them? LCM of
9. These two tables are not coming in any of the common, किसी भी एक कॉमन टेबल में नहीं आते. तो फर्स्ट यू राइट हियर 5, that is 5 ones are 5 and 9 नहीं आता है, then 9 ones are 9. ओके, अगर ये किसी के टेबल में आते होते तो हम उसे वैसे लिखते हैं. देन एलसीएम ऑफ 5 and 9 इज, एलसीएम ऑफ 5 and 9 इज क्या होगा, 5 into 9, that is 45. Okay, that means LCM of 5 and 9 is 45. Okay, that means you have to make the denominator of both of them 45. जो आपका LCM आएगा वही आपको इन दोनों का डिनोमिनेटर बनाना है. तो what will you do? You will do 4/5. इस 5 को अगर आपको 45 बनाना है तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? दैट मीन्स आपको ये बताना है कि 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है. 5 9s are 45, 5 9s are 45, that's why you multiply here with 9. अगर आपने डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर. आपको उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 4 into 9. ठीक है, ये जो है इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 4 into 9 upon 5 into 9. The value of both of the terms are same because we learnt about the equivalent fraction. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती है. ठीक है, नाउ if there is a 5/9 and you have to make this 9 45, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 9 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है. 9 5s are 45, 9 5s are 45, that means 9 into 5 and 5 into 5, 9 into 5 and 5 into 5. Okay, now अभी आप इसे करोगे 4 9s are 36 and 5 9s are 45 and 5 5s are 25 and 9 5s are 45. अब देखो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये इसका लाइक फ्रैक्शन है. ठीक है, नाउ हाउ विल यू डू इट? दैट इज 45 36 plus 25. What is 36 plus 25? 36 plus 25 कितना होगा? 61. Yeah, that is 61/45. But it is in a, ये जो आया है आपका आंसर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये आंसर आपका गलत है. ये आपका जो आंसर आया ये है 61/45. दैट मीन्स इट इज रॉन्ग. ओके, देन हाउ विल यू फाइंड आउट? आप इसे कैसे करोगे? 61 डिवाइडेड बाय 45. दैट मीन्स 45 ones are 45. 61 minus 45 कितना होता है? 61 minus 45 कितना होता है? 16. The 61 minus 45 is 16. That means you can write it as, आप इसे कैसे लिखोगे? quotient लिखते हैं सबसे पहले, that is 1 and then remainder and then your divisor, that is 45. Now this is a whole number and this is a proper fraction, that means your answer is correct. That means your answer is करेक्ट. ओके, ये है आपका अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन. आपको इसी तरीके से दूसरे टाइप्स के नंबर्स लेके एलसीएम फाइंड आउट करके अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन ट्राई करना है. ठीक है, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय.